Make a list of all the different types of pickles that you know about and share with your friends. So children, please tell me what are the different types, what are the different fruits that are used at your place to make pickle, to make pickle. Mango and lemon. Harshita, please use comment section to answer. Please use comment section to answer. Now, so the answer to the last question of this is list of all the now various pickles, various pickles various pickles are मैम ये नोटबुक में लिखना है या बुक में? बच्चे this has to be there in your textbook. ओके This needs मैम. to be written in your textbook because the question is there in your textbook. Are made from mango, amla, chili, mango. Good morning, amla, chili, मैम क्वेश्चन नंबर कौन सा lemon, है? 40 या 41? jackfruit, jackfruit, carrot, radish and potato. Now children, find out and discuss. Next session is find out and discuss. Now children, for find out and discuss, the answers will be quite long. The answers will be quite long. So this you need to do in your classwork notebook. This you need to do in your classwork notebook. Am I clear? Thank you, Prisha. Amla, chili, raw mango. All these fruits are used. Fruits and vegetables are used to make pickle. Various pickles are made from mango, amla, chili, lemon, jackfruit, carrot, radish, potato. Now find out and discuss में बच्चे I'm discussing the first question. I'm discussing the first question. Now children, I will be discussing the questions with you. जो answers हैं मैंने Google Classroom पे upload कर दिए हैं. आप वहाँ पे जाके answers copy कर सकते हैं. यहाँ पे हम इन्हें discuss करेंगे. And I have a lot to complete with you in this session. I hope you cooperate. Is there any kind of pickle made in your house? बच्चे आपके घर में कौन कौन सा pickle बनाया जाता है? So you can just manipulate the answer. जब आप अपनी नोटबुक में लिखते हैं जो भी पिकल आपके घर में बनाया जाता हो आप वही लिस्ट करें और आंसर को कंप्लीट करें. मैम आंवला के बाद क्या लिखा है? मैम raw mango. I'm discussing the first question of find out and discuss. So children, at my place we make pickles of mango, chili, lemon, amla. Now who makes pickles at your home? Who makes pickles at your home? So it is our. Now we know that most of the household work is taken up by our mother. तो मेरी जो मदर है वही पिकल बनाने में मोस्ट ऑफ द काम करती हैं. Who makes it? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मदर. You can also write that mother makes it and I help her in making pickle. From whom did they learn to make the pickle? अब हमारी फैमिली में हम जो भी कुछ सीखते हैं बच्चे, आपने 3rd क्लास में चैप्टर पढ़ा है ना आवर फर्स्ट होम, उसमें क्या बताया जाता है कि हम हमारे फैमिली से काफी कुछ सीखते हैं. हम हमारी फैमिली से काफी कुछ सीखते हैं. तो उसमें से एक चीज क्या हो सकती है? मेकिंग पिकल्स.
बिकॉज बच्चे सबसे पिकल नहीं बनता है. आई हैव टॉक टू many of my aunts. They say that वो जब पिकल बनाने जाती है तो उनका अचार बहुत जल्दी खराब हो जाता है, और किसी कोई इतना ज्यादा उत्तीर्ण होता है कि उसके हाथ से बनाया हुआ पिकल काफी सालों तक भी चल जाता है. तो children, cooking is also an art, and making pickles also comes in that category. So this is also an art. What all things are needed to make one? Now coming to the next question, children. Please, children, refer to your Google Classroom and write the answers. What things are needed to make one type of pickle in your house? How is the pickle made? Find out the recipe and write. To make a pickle, suppose मेरे घर में बच्चे mango का pickle बनता है. How do my mom makes mango का pickle? First of all, she will cut the mangoes into small pieces. Then what she will do? She will mix masalas to it. She will mix chili powder. First of all, children, you need to know the ingredients that are used in making a pickle. You will require, suppose I'm making raw mango pickle, you will require raw mangoes, all the masalas like chili powder, turmeric, haldi powder, salt to taste. Okay, so all of these are required, and what you do is जब आप उसे sun dry करते हो, आप हमेशा क्या करते हो, हल्दी नमक, सॉरी नॉट सॉल्ट बट हल्दी और मिर्च लगा के, हल्दी और मिर्च, आई थिंक इट इज सॉल्ट आल्सो, टर्मरिक एंड सॉल्ट. व्हेन यू मिक्स टर्मरिक एंड सॉल्ट विद इट, यू प्लेस इट इन द सन, लेट इट ड्राई. उससे क्या होगा कि बच्चे जो मैंगो के अंदर जो मॉइस्चर, जितना भी मॉइस्चर होता है वो बहुत अच्छी तरह से इवेपोरेट हो जाता है, उसमें पानी बचता ही नहीं है. व्हाई डू वी डू दिस चिल्ड्रन? व्हाई डू वी ड्राई these small pieces of mango in the sun? So that the moisture content that is there inside the mango is evaporated. तो इससे क्या होता है कि अचार के जो खराब होने के चांसेस होते हैं ना बच्चे, वो एकदम नील हो जाते हैं. अगर अचार में पानी बचा रहेगा तो वो खराब होगा, बिकॉज अगर कोई चीज मॉइस्ट है, अगर कोई चीज उसमें पानी है या ठंडक है, तो वो उसपे क्या है, उस खाने पे जो है बच्चे फंगस ग्रो कर सकता है. पर जैसे आप सारा वाटर रिमूव कर देते हैं, ठीक है, वाटर रिमूव कर देते हैं, तो उस पे फंगस नहीं उगता. सो ये पूरी चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है. सन ड्राई करने के बाद में हम उसे अंदर लेके आते हैं, फिर वी टेक अ जार विच इज वॉश्ड प्रॉपरली एंड इट इज ड्राइड. उसके बाद हम सारे हम जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं आम के, उसमें डाल देते हैं. वी ऐड मसालास टू इट एंड वी मतलब पूरा एकदम भर देते हैं उसको ऑयल से. why do we fill it with oil? Why do we fill it with oil? So that the contact, मतलब जो हमारा अचार है ना बच्चे, उसका एयर से कांटेक्ट ही नहीं रहे, क्योंकि अगर हम उसमें कम ऑयल यूज करेंगे तो उसका एयर से कांटेक्ट होगा एंड फंगस कैन ग्रो ऑन इट. ऑयल आप बहुत अच्छी तरह से ऑयल करोगे, बहुत अच्छी बात है, बट यू नीड टू resist the contact of the pickle with the air. How are these things made in your house? Coming to the third question, children, how are these things made in your house? We'll be talking about papad chutney, इडली, डोसा, ढोकला, sauce. Okay, मैम इसे बुक में लिखना है? नहीं बच्चे टेक्स्ट बुक में मत लिखना, इसे आप अपनी क्लास वर्क नोटबुक में लिखेंगे. नोट्स मैंने गूगल क्लासरूम पे डाल दिए हैं इसके. प्लीज रेफर टू, फॉर नोट्स यू हैव टू रेफर टू गूगल क्लासरूम. यस मैम. ओके, इज इट क्लियर? यस मैम. पापड़ कैसे बनता है बच्चे आपके घर में? अगर सपोज साबूदाना का पापड़ इज वेरी फेमस, आप उसे बॉईल करते हो, उसमें मसाला ऐड करते हो, फिर एक थोड़ा सा मॉइस्ट सा क्लॉथ लेते हो और उसके ऊपर इस तरह से पूरियां सी बना देते हो. जब आप पूरियां उसके ऊपर बना देते हो और सन ड्राई के लिए रखते हो, उसके बाद वो सूख जाता है, फिर उसे डीप फ्राई करके और उसको खा सकते हैं. चटनी कैसे बनाई जाती है बच्चे? सपोज आई वांट टू मेक मैंगो चटनी, आई विल रिमूव इट्स स्किन. जो भी अंदर का पल्प रहेगा उसे मैं क्या करूंगी, ग्राइंड करूंगी. ग्राइंड किस में करूंगी? बाय एडिंग ऑल द मसालास एंड सॉल्ट टू इट. सॉस किस तरह से बनाया जाता है? व्हेन इट कम्स टू केचप,
केचप में चिल्ड्रन जो टमाटोज होते हैं, केचप में how do you make ketchup? Tomatoes are dried first, removed, like all the water is removed, and then masalas is added to it, it is grinded, and then it filled into bottles. It is a 2-day journey by train from Pune to Kolkata. If you were to go on this trip, what food items would you carry with you? How would you pack them? Make a list on the blackboard of all the packed food. What food would you eat first? तो बच्चे जब भी हम 2 दिन की ट्रेन जर्नी के लिए जाते हैं तो हम हमारे साथ में हमेशा क्या कुछ स्नैक्स खरीदते हैं. हम हमेशा we keep biscuits and snacks with us. Why do you do that? Because we know if we take cooked food with us, it will rot. Ma'am, water. If you do not eat that food, like अगर मैंने दोपहर में मेरे को जाना है, मैंने दोपहर का खाना बनाया, शाम को भी मैं उसे खा लूंगी अगर बहुत ज्यादा गर्मी नहीं है तो, लेकिन अगर बहुत ज्यादा गर्मी होगी definitely that food will rot and that food will be spoiled and you will not be able to eat it. And if you eat spoiled food, children, that causes if you eat spoiled food, it will cause food poisoning, and that is very dangerous. It can cause even the death of a human. So children, now, yes, so बच्चे, what will you carry? First of all you will carry snacks, biscuits, namkeen, because these can stay for long. क्यों बच्चे? पैकेट्स में ये आते हैं ना, जिन पैकेट्स में ये आते हैं उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जिसकी वजह से दे स्टे फॉर अ लॉन्गर टाइम. क्योंकि हम हमेशा देखते हैं ना पैकेट्स पे मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, एक्सपायरी डेट होती है, राइट. एक्सपायरी डेट अगर चली जाती है तो हम लोग फिर उस सामान को नहीं खरीदते, तो हम स्नैक्स लेके जाएंगे, बिस्किट्स, नमकीन लेके जाएंगे और साथ में खाना भी लेके जा सकते हैं. मैम पानी. ये सारी चीजें, दीज आर ऑल द जंक फूड ना बच्चे. तो अगर हम सपोज हम इनको खाते रहेंगे तो दैट इज नॉट हेल्दी फॉर आवर बॉडी. वी नीड टू हैव होम मेड फूड ऑल्सो, राइट. व्हाट वी हैव लर्न. बच्चे वीडियो को 1 मिनट के लिए ऑफ कर रही हूँ मैं. आपका कैमरा ऑफ है और बोल के गई थी. मैम नहीं बोला है. मैम नहीं बंद कर रहे. मैम नहीं बंद कर रहे. ओके, आई एम हियर ओनली बच्चे, मैं ही हूँ. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग बच्चे. मैम ये नोटबुक में लिखना है. अभी बच्चे कम टू दिस सेक्शन, व्हाट वी हैव लर्न. मैम योर वॉइस इज नॉट क्लियर. नाउ दिस आल्सो यू नीड टू डू इन योर क्लास. वॉइस इज क्लियर. लिखने के लिए यहाँ पर स्पेस नहीं है लिखने के लिए. आई एम गोइंग टू, देयर आर 2 क्वेश्चंस एंड आई विल डिस्कस विद यू द 2 क्वेश्चंस. I am discussing with you now the first question. Glass jars and bottle are dried well in the sun before filling them with pickles. Why is this done? Do you remember what happened to the bread in the experiment? Now बच्चे, जब हम लोगों ने ब्रेड का एक्सपेरिमेंट किया था, children, what happened to the bread? The bread got spoiled. Fungus start growing. Vedant, good morning बच्चे. Vedant, you seem so sleepy. थोड़ा पानी पियो. स्माइल करो बच्चे. यस. इश्मिता, आपको भी नींद आ रही है? Now, so children, why do we do this? Why do we dry? हम ड्राई क्यों करते हैं बच्चे? हम ग्लास जार्स की बॉटल्स को यूज करते हैं which are dried well in the sun before filling them with pickles. Why do we do this? Because अगर हम बॉटल को अच्छी तरह से धो के उसे सुखाएंगे नहीं तो उसमें तो पानी रह जाएगा, और अगर पानी का कांटेक्ट आया पिकल के साथ में तो पिकल तो खराब हो जाएगा.
राइट? सो कैन यू वेरी वेल रिलेटेड विद द एक्सपेरिमेंट जो हमने ब्रेड के साथ में किया था, क्योंकि वो मॉइस्ट था बच्चे। हमने उस एक्सपेरिमेंट में बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस में पढ़ा था कि हमें ब्रेड को थोड़ा मॉइस्ट रखना है। वी हैव टू पुट ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द ब्रेड सो दैट इट रिमेन्स मॉइस्ट। तो जहां पे भी मॉइस्चर आएगा बच्चे वहां पे फूड खराब हो जाएगा। जहां पर भी मॉइस्चर आएगा बच्चे वहां पे फूड खराब हो जाएगा। राइट? अंडरस्टूड? तो किसी तरह से भी पानी नहीं लगना चाहिए पिकल को। To eat mangoes round the year, we make different items. Yes, different items like pickle, aam papad, chutney, chikki, etc. List some other food with which we make different things so that we can enjoy it throughout the year. मैंगो शेक, तो बच्चे बहुत सारी चीजें हैं जो हम बना सकते हैं, जैसे आंवला का मुरब्बा बनता है। मैंगो शेक, किस चीज का बनता है बच्चे? मुरब्बा व्हाइट गॉड का, आंवले का बनता है। फिर वेजिटेबल्स, हम वेजिटेबल्स को मैंगो शेक, पीस होती, चिक पीस होती है ना, मैम कैरी का सर्दियों के टाइम बनता पे है। आती है। सर्दियों के टाइम पे मटर आते हैं ना, यू कैन ऑल्सो कीप देम ड्राइड इन द सन। और फिर उसको आप क्या कर सकते हो, जब भी आपको बनानी हो उसकी सब्जी, यू पुट देम इन द बॉइलिंग। ओके बच्चे, अंडरस्टूड? मैम मैम मैंगो शेक भी पेड़ा बनाते हैं। is made from milk and banana chips. Now children, आप देखते हो स्वीट्स बनाई जाती हैं। हम दूध को अगर अच्छी तरह से हम दूध को बॉईल करते हैं ताकि उसकी लाइफ लॉन्ग हो, 1 या 2 दिन तक वो चले। और जो स्वीट्स हम बनाते हो तो काफी दिन तक चलती है, राइट? क्योंकि उसमें शुगर एडेड होता है, राइट? कोई भी चीज अगर मीठी है तो वो काफी दिन तक चल जाती है। हम भी अपने घर में स्वीट्स जो हैं वो 3 से 4 दिन तक रख लेते हैं, राइट? फिर उसके बाद में आती है बनाना चिप्स। बच्चे बनाना तो अगर आप देखोगे 2 दिन में ही मैंगो शेक, शुरू हो जाती है। इफ यू कीप देम फॉर मोर देन 2 days तो इट विल नॉट, वो धीरे धीरे क्या होता है अंदर से बहुत ही एकदम व्हाट कैन आई से, उसमें वो पल्प जो होता है वो चेंज होने लगता है, राइट? तो यस आपको मैम, विद इन 2 days आपको बनाना को खाना होता है। पर आप अगर उनकी चिप्स बना लेते हो, बनाना चिप्स किसकी बनती है बच्चे? कच्चे केले की बनती है, यस मैम। राइट? तो अगर हम उसे डीप फ्राई कर लेते हैं तो वो काफी टाइम तक चलती है। वी आर डन विद द चैप्टर चिल्ड्रन, वी आर डन विद द चैप्टर। एक बार आप मैम गूगल क्लासरूम पे now please come to पेज नंबर 37, प्लीज कम टू पेज नंबर 37। यहाँ पे एक्टिविटी का एक आंसर है जो मुझे आपको लिखाना है। प्लीज कम टू पेज नंबर 37। मैम जो आपने कल काम भेजा था आपसे, प्लीज हमें कम टू आज पेज नंबर 37। आज ही सेंड करना है। प्लीज कम टू पेज नंबर 37। यस मैम। यस, फाइंड आउट द रीजन फॉर दीज चेंजेस। हमने देखा था कि काफी सारे चेंजेस आते हैं ब्रेड में। पहले वो हल्का पहले वो मॉइस्ट रहता है, उसके ऊपर एक वाइट वाइट लेयर आती है, फिर उसके बाद में इट स्टार्ट्स बिकमिंग ग्रीन एंड देन फाइनली इट बिकम्स ब्लैक। एंड यू कैन सी सो मेनी थिंग्स, यू कैन सी लाइक कुछ एकदम स्नो टाइप में उसके ऊपर रहता है, जिस तरह से मकड़ी के जाले होते हैं ना, वैसे भी यू कैन, वो पूरा मतलब ऐसा फ्लफी फ्लफी उसके ऊपर ब्लैक ब्लैक रहता है। सो दैट इंडिकेट्स द ग्रोथ ऑफ फंगस ओवर ब्रेड। फाइंड आउट द रीजन फॉर दीज चेंजेस, फ्रॉम वेयर डिड द फंगस कम ऑन द ब्रेड। Now the changes happened. Please write the answer children, please write the answer. These changes मैम उसको लिखना है। हाँ बच्चे, टेक्स्ट बुक में लिखना है, ये आपको टेक्स्ट बुक में लिखना है। These changes happened due to rotting of bread, due to rotting of bread. मैम लेफ्ट साइड From where did the fungus come on the bread? Now बच्चे क्या होता है, एयर में ना स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स ऑफ फंगस, स्पोर्स ऑफ fungus, spores of fungus, spores of fungus are present in the air, are present
मैम ड्यू के बाद समथिंग है। air. Please write this in your textbook. When कैमरा थोड़ा लेफ्ट साइड में कर दो। they, मैम लेफ्ट साइड वाला नहीं दिख रहा है। अच्छा एक मिनट, when they मैम when लेफ्ट साइड वाला नहीं दिख रहा है। get a moist surface. I can hear you children. Get a moist surface. When they get a moist surface नहीं आ रही है। and food मैम लेफ्ट साइड का नहीं दिख रहा। they begin to grow. मैम लेफ्ट का नहीं दिख रहा। Is it clear to you? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैम बोर्ड इज नॉट क्लियर। यस मैम। मैम बोर्ड इज नॉट क्लियर। जी उठ जाओ। बोर्ड इज क्लियर। Now children, for children who are not able to see the board clearly, I will put the notes on the Google Classroom. I will put the notes in the Google Classroom. Okay? Please do not worry. मैम नोट को तो नोटबुक में लिखना होगा ना। हाँ बच्चे, इसको ये जो है पेज नंबर 37 है टेक्स्ट बुक का, ये जो आंसर है ये आप टेक्स्ट बुक में लिखिए। इससे पहले जो मैंने आपको दिया था वो भी आपको टेक्स्ट बुक में ही लिखना है। यहाँ पे थोड़ा स्पेस अवेलेबल है चिल्ड्रन। व्हाट यू कैन डू इज, आप इसे नंबर दे दीजिए यहाँ पे ना इस क्वेश्चन को। कैन यू ऑल सी दिस क्वेश्चन? यहाँ पे 1 डालिए और इसके नीचे वाले क्वेश्चन में 2 डालिए। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पे लिख दीजिए और जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे स्पेस है, आप यहाँ पे लिख लीजिए। मैम मैंने यही किया। आंसर ये रहा। क्या बताना चाहती हूँ? कुछ याद रहता नहीं। कौन सा? Are you all done with writing the answer? Done, क्या सबने आंसर लिख No, लिया? ma'am. ओके ठीक है। No, ma'am. No, ma'am. It's okay. I'm No, not ma'am. rubbing it, children. I'm not rubbing it. टू के बाद क्या है? Done, ma'am. टू के बाद Done, ma'am. Okay. Now, please, children. मैंने आपको Google Classroom में वर्कशीट 1 डाली थी ना? यस मैम। राइट? आपको वर्कशीट 2 मिली थी जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स थे, ट्रू और फॉल्स थे और कुछ क्वेश्चंस थे। Yes, So now ma'am. I will be discussing those questions with you. Ma'am, आपने Now I document will be भी discussing भेजे those थे। questions with you. How does a piece of bread taste after you chew it for some Ma'am, time? Please open those भी questions. दिए थे। Please open those Ma'am. questions. Please Ma'am, आप document भी open भेजे थे करें। आपने। Please आप open करें वो questions को। मैम मैं खोल लिया। बच्चे मैंने आपको ये क्वेश्चंस के आंसर्स बहुत पहले ही शेयर कर दिए हैं गूगल क्लासरूम पे, आप वहां पे जाके लिख लेना। मैं आपके साथ में अभी उन्हें डिस्कस कर रही हूँ। नाउ मैम प्लीज टाइप। ओके मैम मैंने आपको सेंड भी कर दिया। हाउ डज अ पीस ऑफ ब्रेड टेस्ट आफ्टर यू चू इट फॉर सम टाइम? अगर हम एक ब्रेड के पीस को बहुत टाइम तक चू करते रहते हैं, वी डिड दिस एक्टिविटी ना फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग में, चूइंग वाली। अगर हम थोड़े टाइम चू करते हैं तो उसका टेस्ट चेंज नहीं होता। पर अगर हम एक पीस ऑफ ब्रेड को विच इज मेड फ्रॉम मैदा, राइट, मैदा एंड शुगर, तो वो क्या करेगी? इट विल स्टार्ट टेस्टिंग स्वीट बिकॉज उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे दैट विल ब्रेक डाउन इनटू सिंपल sugars. How does your stomach help in digestion of food? Now children, this is very important. This question is very important. Please mark this question in your notebook. Ma'am, Please your mark voice this is question not in your coming. notebook. This question is very important. How does your stomach help in digestion of मैम food? आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट बच्चे, आवाज नहीं आ रही? अभी आ रही है क्या? आपकी आवाज अच्छे से आ रही है। ठीक है। Yes, ma'am. हमारे जो स्टमक होता है बच्चे, इट इज अ मस्कुलर बैग। वो क्या करता है?
इट कॉन्ट्रैक्ट्स पीरियोडिकली, इट कॉन्ट्रैक्ट्स पीरियोडिकली। इससे क्या होता है, हमारा फूड जो है वो चर्न होता रहता है और डाइजेशन कंप्लीट होता है। प्लस हमारे स्टमक में क्या है, एसिड और एंजाइम्स सेक्रीट होते हैं, जिसकी वजह से फूड गेट्स डाइजेस्टेड। हमारे स्टमक में HCl सेक्रीट होता है, जिससे क्या होता है, जो जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं। Write the symptoms of a child will show if he or she gets no roti or does not get roti or rice to eat during the day. हमने बच्चे 2 केसेस देखे थे ना चैप्टर में, हमने 2 केसेस देखे थे चैप्टर में। एक में बच्ची बहुत ज्यादा थिन थी और एक में बच्चा जो था बहुत ज्यादा, राइट। सो जो पतली बच्ची थी उसके क्या सिम्टम्स थे, उसके काफी थिन आर्म्स और लेग्स थे, प्लस उसकी पॉट बेली थी, यानी उसका जो पेट था वो एकदम बॉल के जैसा था। एंड शी यूज्ड टू फील टायर्ड ऑल डे, उसके पास उतनी एनर्जी नहीं रहती थी कि वो डे टू डे एक्टिविटीज को कैरी आउट कर सके। नाउ what symptoms will a child will show who eats only junk food and leads a sedentary or inactive lifestyle? बच्चे अगर आप बहुत ज्यादा चिप्स खाते रहोगे और बिल्कुल भी आप खेलने के लिए नहीं जाओगे तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, योर बॉडी विल बिकम फैट एंड फ्लैबी, यानी आप बहुत मोटे हो जाओगे। एंड क्योंकि आपकी बॉडी का वेट बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा तो आपके लेग्स में भी पेन होगा और आप बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रहेंगे, ना आपका पढ़ाई में मन लगेगा, ना आपका खेलने में मन लगेगा, क्योंकि एवरी टाइम जो है आप अपने बॉडी का वेट कैरी करोगे। Now, what is the function of saliva present in the mouth? Children, please mark this question. This question is very important. This question is very important. Please mark this in your mark. What is the function of saliva present in the mouth? What is the function of saliva present in the mouth? तो saliva क्या करता है? It moistens the mouth. It helps you in swallowing. It softens the food particles. Food particles को saliva में होते वो soft हो जाते हैं. And it also breaks down carbohydrates. It also breaks down carbohydrates. The kind of work a person does and the kind of food he eats are closely related. Okay, the question to that is not given to you. Now children, मैंने आपको राउंड द ईयर की भी वर्कशीट दी है. लेट मी डिस्कस सम क्वेश्चंस विद यू. मैंगोज राउंड द ईयर की वर्कशीट दी है. लेट मी डिस्कस दीज क्वेश्चंस टू यू. You will get the answers for the same in the Google Classroom. Okay, by within this holiday. बच्चे सैटरडे संडे में ना आपको इनके आंसर्स मिल जाएंगे Google Classroom में. हम अभी डिस्कस कर लेते हैं इन क्वेश्चन आंसर्स को. Sometimes, now how do you come to know that the food has got spoiled? Children, please tell me, how do you come to know that the food has got spoiled? Please write in the comment section. जब भी फूड स्पॉइल्ड हो जाता है ना बच्चे, तो क्या होता है कि उसमें से बहुत बदबू आने लगती है. अगर आप ब्रेड का या रोटी का केस लेते हो तो उसके ऊपर फंगस ग्रो कर जाएगा. कैन यू ईट दैट रोटी? नो. और कभी और आप इससे भी पता कर सकते हो कि अगर आपने वो फूड खाया है वो खट्टा टेस्ट करेगा. सब्जियां और दाल हुई, इनका खट्टा टेस्ट आता है. नेम अ फूड आइटम दैट डज नॉट गेट स्पॉइल्ड फॉर मंथ्स. तो कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो कि मंथ्स तक चल जाते हैं, जैसे कि सॉल्ट, शुगर, हनी, घी. How can we keep these things fresh? First one, milk. Milk को fresh रखने के लिए हम क्या करते हैं बच्चे? हम उसे boil कर देते हैं. Cooked rice and vegetables. Cooked rice और vegetables को किस तरह से fresh रख सकते हैं? We can take a small container जिसमें हम rice या फिर cooked rice या फिर vegetables रखेंगे. We'll put it in a bigger container which is containing water. Chicken या meat को fresh रखने के लिए हम क्या करते हैं बच्चे? मेरे फादर बताते हैं कि जब उनका शिप सेलिंग के लिए जाता था तो दे यूज्ड टू टेक टन्स ऑफ चिकन. ओके, दे यूज्ड टू टेक अ लॉट ऑफ केजीज ऑफ चिकन. और वो क्या करते थे, उन्हें डीप रेफ्रिजरेटर्स में रखते थे ताकि क्या हुआ, वो मंथ्स तक वो मीट सर्वाइव कर जाता था. What are the things needed to make Mamedi Tandra? What are the things needed to make Mamedi Tandra? So you for Mamedi Tandra you need ripe mangoes, a muslin cloth जिसके ऊपर हम लेयर, a muslin cloth जिससे कि क्या होगा कि जब हम लोग उसे पूरा लेयर डालेंगे मैंगो का तो क्या होगा कि मुस्लिम क्लॉथ क्यों यूज किया जाता है बच्चे, ताकि हम उसे जो मैंगो का जो पल्प होता है उसे छानेंगे ताकि उसका फाइबर निकल जाए. जैगरी और गुड़ और शुगर.
जैगरी भी यूज करेंगे और शुगर भी यूज करेंगे, एंड जैगरी एंड शुगर इज यूज्ड इन इक्वल क्वांटिटी. What is the need of preserving the food? The need to preserve the food is to prevent microbial contamination. हमने देखा ना कि अगर ब्रेड जब मॉइस्ट होती है तो उसके ऊपर तो फंगस उग जाता है, उसके ऊपर फंगस उग जाता है, तो उसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो दिस इज बेसिकली माइक्रोबियल कंटामिनेशन. कंटामिनेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वाटर कंटामिनेशन? वाटर गेट्स कंटामिनेटेड जब उसमें इम्प्योरिटीज ऐड हो जाती हैं, जब उसमें गार्बेज का पानी चला जाता है, राइट? जब पानी में गार्बेज अगर आपने डाल दिया तो इट इज वेस्ट, आप उसे पी नहीं सकते, राइट? अगर गंदा स्यूएज का पानी उसमें मिक्स हो जाता है तभी भी आप नहीं पी सकते, राइट? अगर आप पीते हैं उसे तो आप बीमार पड़ जाएंगे. Now what are the things needed to make Mamidi Tandra? ये हो गया. What is the now to minimize food spoilage? To minimize food spoilage, तभी भी आप प्रिजर्व करते हैं फूड को. मैंने क्या किया? वेजिटेबल्स को सन में ड्राई कर दिया और उसे एक एयर टाइट कंटेनर में ले जाके फ्रिज में रख दिया, तो इट विल बी सेफ. मैं मंथ्स के बाद में भी उसे खा सकती हूँ. टू प्रिवेंट फूड पॉइजनिंग. अगर आपने एक बुरा खाना खाया है, आपने एक स्पॉइल्ड फूड को खाया है, तो आप क्या किससे सफर करेंगे बच्चे? फूड पॉइजनिंग से. यू विल सफर फ्रॉम food poisoning. What is food preservation? What do you understand by food preservation? Food preservation is the process of treating or handling of food in such a way to stop or greatly slow down. या तो आप उसे कम कर देंगे, खत्म कर देंगे, या फिर उसके जो प्रोसेस है जिससे वो खराब हो रहा है उसको स्लो डाउन कर देगा. To slow down spoilage and prevent food-borne illness, यानी food to prevent food poisoning. List the various ways in which fruits and vegetables can be preserved. So fruits और vegetables को हम किस किस तरह से preserve कर सकते हैं बच्चे? First method is drying. इसमें क्या होता है कि आप बाहर रख दोगे सनशाइन में, अच्छी कड़क धूप पड़ेगी, all the water will evaporate. वाटर इवेपोरेट हो जाएगा तो कुछ फंगस या फिर कोई और माइक्रोबियल एक्शन उसके ऊपर नहीं होगा. कैनिंग. कैनिंग में क्या होता है बच्चे? वी टेक अ क्लीन जार. हम उसमें क्या करेंगे? हमने क्या किया? उस विद द वाटर कंटेंट हमने उस फूड को उसमें रख दिया और उसे एक एयर टाइट कंटेनर में रख दिया. तो इससे क्या होगा कि वाटर और मतलब जो खाना है और जो बाहर की एयर है उसका कांटेक्ट खत्म हो जाता है. पिकलिंग. पिकलिंग में क्या होता है बच्चे? जब भी हम पिकल बनाते हैं हम हमेशा या तो फ्रूट लेते हैं जो कि बहुत खट्टा हो, या फिर हम अगर किसी और चीज का बना रहे थे उसमें विनेगर ऐड करते हैं, सॉल्ट ऐड करते हैं, शुगर ऐड करते हैं. ये तीनों ही चीजें बच्चे फूड को प्रिजर्व करने के लिए यूज होती हैं. इजिप्शियंस क्या करते थे? नॉट क्लियर. नाउ फ्रीजिंग. फ्रीजिंग में क्या होता है बच्चे? जैसे मैंने क्या किया? फ्रूट्स को अपने फ्रिज में रखा, तो उससे क्या हुआ कि बाहर की जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, जैसे कि अगर हम देखें तो अगर बाहर का एनवायरनमेंट बहुत ही ज्यादा हॉट होता है सो इट कॉजेस डिहाइड्रेशन. जो फ्रूट्स वगैरह रहते हैं उनका सारा पानी तो चला जाता है, धीरे धीरे दे स्टार्ट रॉटिंग. तो अगर आप रेफ्रिजरेटर में रख रहे हो फ्रूट्स को, वेल एंड गुड, यू आर मेंटेनिंग द टेम्परेचर, इसकी वजह से फूड खराब नहीं होगा. नाउ राइट द नेम्स ऑफ फिर उसके बाद एक और सिचुएशन होती है सॉल्टिंग. एक और बच्चे तरीका है सॉल्टिंग. सॉल्टिंग में क्या होता है? आपने एक बाउल में पानी लिया, शुगर मतलब सॉल्ट ऐड करते रहो जब तक वो पूरा सोल्यूशन ऐसा ना हो जाए कि आप उसमें और सॉल्ट ऐड ना कर पाओ. और जैसे ही वो सोल्यूशन आपको मिल जाता है यू कीप इट इन द फ्रीजर. तो आप धीरे धीरे देखोगे कि जो सॉल्ट है ना पानी में, जो सॉल्ट होता है पानी में, वो धीरे धीरे सारे फ्रूट्स के ऊपर जमना शुरू हो जाता है. ठीक है? तो इससे क्या होता है? लेयर क्रिएट हो जाता है और वो जो फ्रूट रहता है वो प्रोटेक्टेड रहता है. Write the names of some food items that can made by using raw or ripe mangoes. तो raw और ripe mangoes किस तरह से बनाए जा? raw और ripe mango से आप क्या क्या बना सकते हैं? raw mango से हम पिकल बनाते हैं, हम raw mango से रसम भी बनाते हैं, उसके बाद में आम पन्ना भी बनता है उससे. राइप मैंगो से क्या बनता है बच्चे? राइप मैंगो से हमें पता है, हम सबके घर में मैंगो शेक बनता है. मैंगो लस्सी बनती है. यस मैम. मैंगो जूस बनता है. यस मैम. फ्रॉम मैंगो, राइप मैंगो से मामिडी तंद्रा भी बनता है, यानी मैंगो का जो केक होता है वैसे भी बनता है.
Now, very important, children. This question is very important for you. This question is very important for you, children. इससे आपको सारी now you have to remember बच्चे ये जो जितनी भी टेक्निक्स दी हुई है ना आपको ब्लैक में दिखाई दे रही है ये जो सारी जो टेक्निक्स है वो आपने याद रखनी है 8 टेक्निक्स होती है फूड को प्रिजर्व करने की वो सब आपने याद करनी है प्लीज राइट अ क्वेश्चन इन योर क्लासवर्क नोटबुक प्लीज राइट अ क्वेश्चन प्लीज राइट अ नोट इन योर क्लासवर्क प्लीज राइट अ नोट इन योर क्लासवर्क नोटबुक Please write a note in your classwork notebook. Various methods. Various. मैम ये वर्कबुक है क्या? Methods. मैम ये आंसर है क्या? मैम ये वर्कबुक है क्या? नहीं बच्चे नंबर क्या है? This is a note. Please write in your classwork notebook. Various methods. मैम पेज नंबर क्या है? Preserve. मैम पेज नंबर क्या है? इसे notebook में लिखो children. Please write this in your classwork notebook. Please write this in your classwork notebook. These are your notes. These are your notes. दिखाई दे रहा। मैम पेज नंबर क्या है? बच्चे प्लीज राइट दिस इन योर क्लासवर्क नोटबुक मैम पेज नंबर क्या है? नहीं है प्लीज राइट इसको दिस नोटबुक में मेथड लिखना है। 1 ड्राइंग अरे बुक में नहीं होगा ना। ड्राइंग सेकंड फ्रीजिंग थर्ड ऑयलिंग फोर्थ स्वीटनिंग एंड सॉल्टिंग sweetening and salting. Fifth, adding preservatives. Adding preservatives. 6, pickling. 7th, canning. 8th, boiling. 8th is boiling. Please write all these methods of preservation in your classwork notebook. Please write these methods of preservation in your classwork notebook, children. क्या है ना मैम बच्चों के लिए ठीक हो जाता है फोटो लेते गूगल क्लासरूम पे डालते बच्चे लिख लेते हैं मेरा तो ही टूटता है तू अपना ख्याल मैम राइट साइड में करो Now children, have you all written this in your classwork notebook? Bache, I will put the photo of this in Google Classroom as soon as the class gets over. We'll discuss the questions of the workbook in the next session. Till then, goodbye. Thank you. Have a great day ahead. Thank you for cooperating in this class. बाय मैम Bye-bye, children. Take care.